Hope you are all right. So let's start our today's lesson. Today we are doing block 5, understanding the perspective, and lesson plan 1, character perspective. So you will be able to identify the main character's perspective in the story. So what do you think is the girl's view on the mornings, and which details help you to know this, and what is your perspective on waking up? So before answering this question, we are going to read a paragraph. When the alarm rang in the morning, she closed her eyes even more tightly. She searched for the clock with her hand and hit it, put it off the alarm. She always thought that everything that could be done in the morning could also be done at night. Then why wake up? She quickly drew shut the curtains that her mother had opened to let the morning sun in. Her mother shouted from outside, "Time for you, morning shower." A shiver ran down her spine and a strange feeling took over her senses. सो जब भी अलार्म बजता था, ये गर्ल के बारे में बताया गया है कि जब भी अलार्म बजता था वो अपनी आइज़ जो है टाइटली और ज़्यादा बंद कर लेती थी और वो क्लॉक को ढूंढती थी फिंगर से, उसे अलार्म को ऑफ़ कर देती थी। उसे लगता था कि मॉर्निंग में क्यों उठा जाए, जो काम सुबह कर सकते हैं वो रात को भी तो कर सकते हैं। और उसकी जो कर्टेन्स बंद कर देती थी और मम्मी बाहर से आवाज़ लगाती थी, तुम्हारे जो है नहाने का टाइम हो गया है, और एक अजीब सी फीलिंग होती थी उससे। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द गर्ल्स व्यू ऑन द मॉर्निंग? आपको क्या लगता है कि जो गर्ल है वो मॉर्निंग के बारे में क्या सोचती है, और कौन सी डिटेल से आपको ये पता चला है, और उसका सुबह उठने के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? हर रिएक्शन लाइक हिटिंग द अलार्म क्लॉक, क्लोजिंग हर आइज टाइटली एंड ड्रॉइंग द कर्टेन शट, and her feeling strange on hearing about the morning shower and the thought that morning task could be done at any time during the day help us know she views waking up in the morning as unnecessary and worth avoiding. This is our perspective on waking up in the morning. A perspective is person's view or opinion about something, and some of us love waking up in the morning while others don't like it. सो दीज आर डिफरेंट परस्पेक्टिव अबाउट द सेम थिंग। सो जैसे कि गर्ल के रिएक्शन थे, आइज़ को टाइट करना, कर्टेंस को क्लोज कर देना, स्ट्रेन सी फीलिंग होना मॉर्निंग शावर के बारे में सुन के, और उसे लगता था कि जो काम हम सुबह कर सकते हैं वो किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो ये उसका पर्सपेक्टिव है, वो अननेसेसरी समझती है, वो ज़रूरी नहीं समझती कि सुबह उठना ज़रूरी है। सो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। हम में से किसी को जल्दी उठना पसंद है, किसी को नहीं है। सो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। पर्सपेक्टिव किसी के भी सोचने का एक तरीका होता है। So today we will be reading the story The Little Girl and understand how we can identify a character perspective. आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे लिटिल गर्ल एट पेज नंबर 37 और समझेंगे कि किसी भी पर्सन का पर्सपेक्टिव कैसे हम समझ सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave his daughter a cursory kiss, to which she responded with "Goodbye, father." She was filled with a sense of relief when she heard the noise of buggy growing fainter and fainter down the long road. In the evening, she heard the loud voice in the hall, "Bring my tea. Where is the newspaper? Have the taken it into the kitchen again, mother. Go to look for my papers." When her mother asked her to come down to the father's study, she would slip down the stairs, holding tightly onto the banisters with one hand, more slowly still across the hall, and push open the door. By the time he had his spectacles on and looked at her, so this story is about a little girl and her father. सो जो गर्ल है वो बहुत डरती थी पापा से, और पापा जो है बहुत बड़े से थे, और ये बड़ी बड़ी नेक थी, नोज़ थी, आंखें थी, और वो वक्त पे जाने से पहले उसके पास आते थे और उसे किस करते थे। और जो डॉटर है वो पापा को गुड बाय बोलती थी, और वो जब जिस बग्गी में, जिस गाड़ी में वो जाते थे, जब वो धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होती जाती थी तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती थी, बिकॉज शी वॉज़ वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर। एंड शाम को फिर उसे हॉल में एक तेज़ सी आवाज़ सुनाई देती थी कि मेरी चाय लेके आओ, न्यूज़पेपर कहाँ है, और क्या तुम किचन में ले गए हो दोबारा, मम्मी जाओ मेरे पेपर्स ढूंढ के लाओ। सो ये सब पापा कहते थे आते ही शाम को। और जब भी मम्मी कहती थी लिटिल गर्ल से कि वो आके मिले पापा से स्टडी में, सो वो धीरे धीरे बनिस्टर को होल्ड करती हुई आती थी, बहुत डरती थी। और जब वो डोर खोलती थी पापा के स्टडी रूम का, बहुत ज़्यादा अफ्रेड होती थी वो पापा से। और जब पापा ने अपने स्पेक्टिकल्स लगाए होते थे और वो लिटिल गर्ल को जो है ऐसे गुस्से से देख रहे होते थे, सो फिर पापा पूछते थे काश से, "वेल काश, बीन अ गुड गर्ल टुडे, आज आप अच्छे बच्चे बन के रहे ना?" "आई डोंट नो फादर." अब देख रहे हो कि आप डोंट नो, शी इज स्टटरिंग मीन्स शी इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर।
You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. कि अब पापा कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे स्टटर करोगी तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के लिए जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. कई बार होता है कि जब हम सोचते हैं ना कि हम गलती नहीं करेंगे तो हमसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो स्टटर किसी और के सामने नहीं करती थी, पापा के सामने ही करती थी. What's the matter? What are you looking so raised about? Mother, I wish you would teach this child not to appear on the blink of suicide. Here, Cass, carry my teacup back to table carefully. Your hands jog like an old lady's, and try to keep your handkerchief in your pocket, not up your sleeve. सो पापा पूछ रहे हैं बेटा क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो, और इस तरह से स्टटर नहीं करते हैं. ये जो टी कप है टेबल पे रख दो ध्यान से, और तुम्हारे हाथ जो है जैसे कि ओल्ड पीपल के, बूढ़े लोगों के जो हैंड्स जो हैं कांपते हैं, ऐसे ही तुम्हारे हैंड्स जॉग करते हैं. और अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मम्मी को डॉक्टर के लिए जाना पड़ेगा, और अपने जो हैंडकरचीफ को है पॉकेट में रखा करो. ये यस फादर. On Sundays, she sat with him in church, listening while he sang in a loud, clear voice and watching while he made little notes during the sermon. He said his prayers so loudly that she was certain God heard him above the priest. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone in the nursery was like thinking about a giant. One day, grandfather told her that it was the father's birthday the next week. She suggested that she make him a pincushion as a present. She gave her a beautiful piece of yellow silk to work on. She worked hard cutting and sewing the silk together. संडे को जो पापा के साथ वो चर्च में होती थी, और पापा के बड़े बड़े हैंड्स थे, और वो बहुत तेज़ गाना चाहते थे प्रेयर को, ताकि वो उनकी बेटी अच्छे से समझ सके, और उसे जाइंट जैसे लगते थे अपने पापा. एक दिन ग्रैंड मदर ने लिटिल गर्ल को बताया तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला, तुम उन्हें सरप्राइज़ दे सकती हो, पिन कुशन बना सकती हो. उन्होंने उसे एक येलो सिल्क दिया ताकि, और उसने बहुत मेहनत की उसको कटिंग करने में, उसको स्यू करने में. शी gathered some sheets of paper from mother's room, shredded them into pieces and stuffed it into the pin cushion. उसने मम्मी के रूम से कुछ पेपर ले लिए, उनको काट दिया और उनके टुकड़े जो थे वो स्टफ़ कर दिए कुशन में. And then night there was hue and cry over the house. Father's great speech for the harbor board was lost. The rooms were ransacked and the servants were questioned. Finally, mother came to the little girl's room. और रात को काफ़ी जो है शोर शराबा था पापा के रूम में. पापा स्पीच के पेपर्स ढूंढ रहे थे, उन्हें नहीं मिल रहे थे, सबसे पूछा जा रहा था. तो मम्मी आई गर्ल के रूम में. काश आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. कि आपने, मम्मी ने पूछा बेटा आपने कोई पेपर्स तो नहीं देखे. ओ यस आई डिड, शी सेड. आई टोल्ड देम फॉर माई सरप्राइज. और मैंने उन्हें फाड़ दिया है, मैंने देखे थे. वर्ड स्क्रीम मदर. मम्मी को अब गुस्सा आया, मम्मी शाउटिंग करने लगी. द लिटिल गर्ल वॉज देन ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. अब गर्ल को नीचे ले जाया गया जहाँ पे पापा जो है इधर उधर घूम रहे थे. एंड व्हेन मदर एक्सप्लेन्ड व्हाट हैपेंड टू द स्पीच ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द गर्ल स्टूपीफाइड. अब जब पापा जो को मम्मी समझाने लगी कि स्पीच का क्या हुआ है, तो वो गुस्से से देखने लगे, बहुत हैरान हुए. डिड यू रियली डू दैट, क्या तुमने किया. नो नो नो, शी विस्पर्ड. वो धीरे से बोली नहीं पापा नहीं. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच द पेपर, सी दैट द चाइल्ड इज़ पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट. कि ऊपर जाओ और पेपर ले आओ और जो है इस बच्चे को सुला दो. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, she lay in the shadowed room. Father walked in with a ruler in his hand and said, I'm going to whip you for this. बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी और डार्क रूम में थी. पापा अंदर आए रूलर लेके, एक स्केल लेके, और उसको बोला कि अब मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ. ओ नो, शी स्क्रीम्ड कावरिंग अंडर हर बेड क्लॉक्स. कावरिंग क्या है, एक लो पोजीशन में हो जाना डर की वजह से. तो अब उसने जो बेड क्लॉथ्स थे, जो बेडशीट थी, चादर वगैरह थी, उसके नीचे उसने कहा कि नहीं पापा. वो चिल्लाने लगी. Sit up and hold out your hands, he commanded. You must be taught once and for all not to touch things that do not belong to you. कि तुम चुप हो जाओ और तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि तुम फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक ना करो. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. पापा तो आपके बर्थडे के लिए था. Down came to the ruler on her little pink palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in rocking chair, the child cuddled into her soft body. फिर जो है दादी ने उसे कंफर्ट दिया. What did God make fathers for? She sobbed miserably. वो रो रही है, कह रही कि पापा बनाए क्यों हैं भगवान ने. I tried explain to him but he was too upset to listen tonight. Go to sleep darling, you will forget about it in the morning, said grandmother, स्टॉकिंग हर है. अब जैसे कि जब पापा आप पे गुस्सा हो जाते हैं तो मम्मी आपको कहती है बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. पापा गुस्से में थे तो दादी वही कंफर्ट कर रही है उसे कि सब ठीक हो जाएगा सुबह.
But the child never forgot this time. She saw him. She waved both her hands behind her back as a deep red color stained her cheeks. लेकिन बच्चा इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाया और जब भी वो देखती थी पापा को उसे याद आता था कैसे विपिंग की थी अपने हाथ पीछे कर लेती थी उसके चिक्स रेड हो जाते थे. One day, through a hole in a garden fence, she saw the McDonald's, Mr. McDonald with his 5 children, the happy father with baby Mac on his shoulders and 2 little girls hanging on to coat-tails, ran round and round the flower bed, shaking with laughter. The two cheerful naughty boys wanted to get them wet. First she was surprised at the sight, but after some time she found herself giggling and laughing with them. She looked at the loving father and his children for a long time. Then she decided that there were different sorts of father. एक दिन उसने देखा गार्डन में से मिस्टर मैकडोनल्ड को जो अपने 5 बच्चों के साथ बहुत खुश थे, खेल रहे थे और उससे फिर एहसास हुआ कि जो अलग अलग तरह के पापा होते हैं इस दुनिया में. One day mother suddenly became ill and she and grandmother drove into town. The little girl was left in the house with Alice, the governess, जो उनकी मेड थी. उसके साथ लिटिल गर्ल अकेली थी और जो मम्मी बीमार हो गई थी तो मम्मी और दादी हॉस्पिटल में गई थी. It was all right in the daytime, but when Alice was putting her to bed, she suddenly grew afraid. दिन के टाइम सब ठीक था लेकिन रात को वो डर गई. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then grandmother takes me into her bed. She's not here now. What will I do if I have a nightmare? अगर मुझे कोई बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी? अगर मुझे बुरा सपना आता है तो दादी अपने रूम में ले जाती हैं लेकिन आज वो यहाँ है भी नहीं. यू जस्ट स्लीप चाइल्ड सेड अलाइज पेटिंग हर. उसको पेट करते हुए बोला कि बेटा आप सो जाओ एंड यू शाउट आउट एंड वेक योर पुअर फादर. अगर तुम ऐसे चिल्लाओगी तो पापा जग जाएंगे. दैट नाइट शी हर्ड द सेम ओल्ड नाइटमेयर, अ बच्चर कैरिंग अ knife and a rope and smiling a dreadful smile at her. She stood there looking and could not move. When she woke up crying and shivering with fear, she saw her father beside the bed. अब रात को उसे वही सपना आया जैसे एक बच्चर है वो एक नाइफ लेके खड़ा हुआ है, उसे डरा रहा है, स्माइल कर रहा है. तो उसकी जब आँख खुली उसने देखा पापा वहाँ पे खड़े हुए हैं. व्हाट्स द मैटर, ही सेड पिकिंग हर अप इन आर्म्स. उन्होंने गोद में उठाया पापा ने बेटी को. पूछा बेटा क्या हुआ? ओ अ बच्चा नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैंड मदर, शी सेड ट्रेम्बलिंग. उसने ट्रेम्बलिंग काँपते हुए कहा कि मुझे दादी चाहिए. He carried the child along the passage to the big bedroom. He carefully tucked her into his bed and lay down beside her, half asleep, still with Butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm and tightly held on to his shirt. पापा उसे अपने रूम में ले गए, उसे सुलाया, उसके बगल में लेट गए और जो गर्ल ने बड़ा ही कंफर्टेबल फील किया. नाउ द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. अब उसे अंधेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो शांति से लेटी हुई थी. फीलिंग कोल्ड हियर, रब योर फीट अगेंस्ट माई फीट एंड गेट देम वार्म, सेड फादर. पापा ने बोला बेटा ठंड लग रही है तो अपने पैर जो है मेरे पैरों पे रब कर लो तो वो गर्म हो जाएंगे. टायर्ड ही स्लैप बिफोर द लिटिल गर्ल. थके हुए थे पापा दिन भर के काम से, वो गर्ल से पहले सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक फ़नी सी फीलिंग आई. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल. अब उसे लग रहा है कि पापा जो हैं अब इतने बड़े नहीं हैं. with no one to look after him, उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है. एंड एवरी डे ही हेड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी आ मिस्टर मैकडोनल्ड. उनको बहुत काम होता है, वो थक जाते हैं, मैकडोनल्ड की तरह नहीं खेल पाते हैं. शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग. शी stirred us suddenly and sighed. What's the matter? asked father waking up. पापा ने पूछा बेटा क्या बात है? Oh, my head is on your heart. मेरा सिर आपके हार्ट पे है. I can hear it going. और मैं आपके दिल की धड़कनों को फील कर सकती हूँ. What a big heart you have got. कितना बड़ा दिल है पापा आपका. So how did the little girl react when she was around her father? How did she feel on seeing him go? जब वो जाते थे तो उसे कैसा फील होता था? How did she feel while thinking of him? And what did she think of him while sitting in the church? How did she feel and what did she think when she punished her? So the little girl felt relieved on seeing her father leaving in the morning. She was asked when she was asked to meet him in the study. In the perspective, she stuttered while trying too hard to say the words properly. She appeared raised in his presence and his hands shivered with nervousness. His big hands, big eyes and loud voice made him appear as a scary giant to her. When he punished her for tearing the important paper, she couldn't understand why fathers were made by God. They didn't do any good to their children. Therefore, she grew all more fearful to him and she never forgot about her father hitting her and feared he would hit her again.
जब पापा सुबह जाते थे वर्क पे तो गर्ल को रिलैक्स फील होता था, और जब उसकी मम्मी या दादी उसे कहती थी पापा से जाके मिला तो नर्वस फील होता था, वो स्टटर करती थी, कांपती थी पापा के आगे, उसे लगता था पापा बहुत जाइंट हैं, उसे बहुत डर लगता था पापा से। और जब से उसे पनिशमेंट मिली थी तो बहुत डर गई थी, हमेशा उसे जब भी पापा को देखती थी ऐसा लगता था पनिशमेंट मिलने वाली है। सो व्हाट कैन वी से is the girl's perspective of her father, and what helped us learn about her perspective, and how can we learn about character's perspective. So the perspective of her father is that he was a big, loud, terrifying, giant-like man who should be avoided because ही पनिशेज हर एंड हिट्स हर विदाउट एनी वैलिड रीज़न। तो उसे पापा को देख के डर लगता है, पापा लगता है उसे बहुत जाइंट हैं, वो अच्छे नहीं हैं क्योंकि बिना ही गलती के उसे पिटाई करते हैं। So we learn about the girl's perspective of her father by closely observing how she reacts in the presence and what she feels when he is around and what she feels in his absence। तो हमें कैसे पता चला गर्ल के पर्सपेक्टिव के बारे में कि जब पापा होते हैं तो वो कैसा फील करती है, पापा नहीं होते तो कैसा फील करती है, एंड व्हाट शी थिंक्स अबाउट ही डज, और वो क्या सोचती है उनके बारे में। दिस मीन्स दैट वी कैन लर्न अबाउट अ करेक्टर्स पर्सपेक्टिव बाय हिज आर एग्जामाइनिंग रिएक्शंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो हम पर्सन के रिएक्शंस को, उनके थॉट्स को एग्जामाइन करके हम करेक्टर के पर्सपेक्टिव का पता लगा सकते हैं। द नरेटर टेल्स द स्टोरी ओनली फ्रॉम लिटिल गर्ल्स पर्सपेक्टिव। इट शोज अस पीपल एंड इवेंट्स the way the little girl sees them. The narrator doesn't share any other character's perspective। तो जो है नरेटर किसी और का पर्सपेक्टिव यहाँ पे शेयर नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ गर्ल का पर्सपेक्टिव बताया गया है। Now let's have a look at worksheet at page number 25. Read this paragraph from the little girl and answer the questions that follow in corrective perspective. So ये जो मैकडोनल्ड्स के बारे में पैराग्राफ बताया था ये वही पैराग्राफ है। सो आपको फीलिंग्स और थॉट्स अंडरलाइन करने हैं कि जिससे आपको ये पता चले कि गर्ल का पर्सपेक्टिव यहाँ पे बताया गया है। सो द यहाँ पे है शी लुक्ड एट द लविंग फादर, कि उसने लविंग फादर पे देखा, एंड शी सो द मैकडोनल्ड्स, उसने मैकडोनल्ड्स को देखा, शी वॉज सरप्राइज। तो यहाँ पे लिटिल गर्ल का पर्सपेक्टिव बताया गया है। एंड व्हाट कुड बी द गर्ल्स ओपिनियन ऑफ मिस्टर मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड के बारे में क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है गर्ल का। शी कुड हैव thought that Mr. McDonald was a happy and cheerful father and he always enjoys with his children, his caring father, kind father, loving father। Second question, from whose perspective has the narrator written the following paragraph? How do you know? ये जो पैराग्राफ है किसके पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। Every morning before going to work, he came into the little girl's room and gave his father a sweet loving kiss, to which the little girl responded with goodbye father। He wanted to play with her, give her a hug and chat with her for hours, but work pulled him away। So this paragraph is written with the perspective of father, and we know this because in this paragraph everything has been told with the perspective of father, that he wanted to play with her, वो खेलना चाहते थे, वो टाइम स्पेंड करना चाहते थे उसके साथ। So students, I hope you can understand the topic very well. You can do as well. Thank you. Have a nice day.